The BJP says it is ready to form a government in the capital if asked to do so by the Lieutenant Governor. This was revealed by the Delhi BJP State Chief Satish Upadhyay. He had met Rajnath Singh, the BJP's former president, earlier this morning. ये टाइम फ्रेम मुझे तय नहीं करना, ये टाइम फ्रेम मेरे पास जब ये स्थिति आएगी तो आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। As you heard over there, Satish Upadhyay is saying that he is not going to announce any time frame for electing the next government. So far, the BJP has said the decision will be left to the Lieutenant Governor. The RSS has already indicated that it is against luring any rebel MPs from other parties to try and form a majority in the Delhi State Assembly. But the BJP has meanwhile asked party leader Jagdish Mukhi to stop his Facebook campaign, which projected him as the party's next chief ministerial candidate. 2004 से लेकर के आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। निगम के अधिकारों में लगातार कटौती की गई है। निगम की सड़कें दिल्ली सरकार ने ले ली। स्लम में कोई काम नहीं हो रहा, वो निगम से ले लिया गया। निगम के तमाम जो पार्षद हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर के, दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को लेकर के, दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें विकास होना चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें निगम काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनमें निगम काम नहीं कर पा रही है। ऐसे तमाम तरह के विषय थे जिन विषयों पर आज हमने माननीय गृह मंत्री से बात की है और उनको अपने जो दिल्ली के कंसर्न है, दिल्ली में जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, दिल्ली में जो काम होने चाहिए, जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो कंसर्न है उसके बारे में आज हमने उनसे बात की है। तीनों नगर निगम All right, so you've been hearing over there sound bites from Delhi State BJP unit leaders who've been talking about the situation in the State Assembly. Remember that Satish Upadhyay has just concluded his meeting with Rajnath Singh. Kamaljeet Sandhu is with us on the phone line for more on the story. Kamaljeet, what more do you know of that happened during that meeting? Well, Satish Upadhyay, when he came out, talked about the clarification of MCD and DMC, but obviously there was a detailed talk regarding the assembly elections also. He was initially very ambiguous in the sense saying that he said that Delhi BJP was ready both to form the government as well as to was ready for the elections. But the fact remains, when he was probed on further, he went ahead and said that they would be ready to form the government if the MLAs rebelled and obviously joined the BJP and not in the present current status. And obviously they don't have the requisite numbers. That was the question which was put to Satish Upadhyay. He obviously was defending and he was saying he does have the numbers. They would do anything in a constitutional way. It will not be an unconstitutional way of forming the government. So obviously there is a little bit of ambiguity right there, saying that they are open to both the options while they don't have the numbers. Goes to show that there is a backdoor talk, there is a backdoor negotiation. Kamaljeet, I'm sorry to interrupt you. I'm being told there's another reaction coming in right now. संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा। और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। आपको कौन देगा? ये तो आप लोग, ये प्रस्ताव आपको कौन देगा? ये तो आप लोग तय करेंगे कि मामला लटका के रखे हुए हैं उसको। आपके पास ये मामला ना तो हमने लटकाया है और ना ही हमने कुछ किया है। ये सब बातचीत अगर आपको करनी है, जो लोग पर्दे के पीछे रह करके कुछ काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद षड्यंत्रकारी आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाकर के कुछ और बात करते हैं, एलजी के पास जाकर के कुछ और बात करते हैं, एमएलएस के साथ मिलकर के कुछ वो सांठगांठ करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ये उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना जाएगा
तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने का ऑप्शन है, तो संख्या कहां से आएगी? संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है, मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, अगर आप लोग तैयार हैं उसके लिए, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट को या फिर होम मिनिस्ट्री को या एलजी को बता क्यों नहीं देते ये सब? नहीं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया साहब जो दोहरी पार्टी के लोग, दोहरी मानसिकता के लोग, उनकी बात का जवाब देना मैं कोई जरूरी नहीं समझता हूं, लेकिन पार्टी को जो हमको करना है वो निश्चित रूप से हमारे लिए सभी बातें, सभी चीजें बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं। चुनाव होगा, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर आएगा सरकार बनाने का, तो उसके बारे में हम अपना आकलन करके हमको अगर हाँ करना है या ना करना है इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Kamal, coming back to you, if you could hear what Mr. Padre was saying over there, in effect saying that he's not going to make any comments about forming a government at this stage, that the numbers aren't with the BJP and therefore they're not going to seek power in Delhi. It's up to the Lieutenant Governor. Kamal, if you can hear me, Satish Upadhyay over there, pretty much leaving things up to the Lieutenant Governor. We seem to have lost our connection there to Kamal, who was with us from Delhi. Let's listen in once again to what Satish Upadhyay said. ट्रांसपेरेंसी आए। शीला दीक्षित सरकार के समय में निगम के साथ जो लगातार भेदभाव होता रहा, निगम की जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं हुआ। निगम में एक नीचे के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर के टीचर से लेकर के क्लर्क से लेकर के 2004 से लेकर के आज तक कोई भर्ती नहीं हुई है। निगम के अधिकारों में लगातार कटौती की गई है। निगम की सड़कें दिल्ली सरकार ने ले ली। स्लम में कोई काम नहीं हो रहा, वो निगम से ले लिया गया। निगम के तमाम जो पार्षद हैं उनकी तमाम समस्याएं हैं। दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर के, दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी को लेकर के, दिल्ली में जो अनऑथराइज कॉलोनी है उनमें विकास होना चाहिए, उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें निगम काम नहीं कर पा रही है। दिल्ली की जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनमें निगम काम नहीं कर पा रही है। ऐसे तमाम तरह के विषय थे जिन विषयों पर आज हमने माननीय गृह मंत्री से बात की है और उनको अपने जो दिल्ली के कंसर्न है, दिल्ली में जो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, दिल्ली में जो काम होने चाहिए, जो आम आदमी के जीवन में खुशहाली आनी चाहिए, उसके लिए जो कंसर्न है उसके बारे में आज हमने उनसे बात की है। तीनों नगर निगम के एकीकरण के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मैंने कहा कि जब ट्राइफिकेशन हुआ था तो ट्राइफिकेशन हुआ था कि अलग से आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, आप लोगों को अलग तरीके से बेहतर गवर्नेंस दे पाएंगे। लेकिन चूंकि शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया और जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको उसी अनुपात में बांट दिया गया, लेकिन उसकी जरूरत ज्यादा थी और उसके कारण से जो गवर्नेंस है उसी को हमने दोबारा से रिव्यू करना है कि हमको जो कर्मचारी हैं, लोगों में जो गुड गवर्नेंस करनी है, उसको इफेक्टिव मैकेनिज्म बना करके हम अच्छी डिलीवरी करें। असेंबली इलेक्शन पे कोई बातचीत हो पाए? नहीं, हमने असेंबली इलेक्शन के संदर्भ में कहा है कि अभी ऐसा कोई भी जो हमारे पास प्रस्ताव है चुनाव को लेकर के, असेंबली इलेक्शन को लेकर के हमारे पास नहीं आया है। लेकिन दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होगा। दिल्ली में जो भी काम होगा वो बिल्कुल जो हमारा एक न्याय संगत है वो होगा और इसलिए हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव अभी नहीं है कि हमको सरकार बनानी है। हमारे पास प्रस्ताव आएगा तो उसके संदर्भ में निश्चित रूप से हमको सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर देंगे। आपको कौन देगा? ये तो आप लोग ये प्रस्ताव आपको कौन देगा? ये तो आप लोग तय करेंगे कि मामला जो लटका के रखे हुए हैं उसको कब? आपके पास ये मामला ना तो हमने लटकाया है और ना ही हमने कुछ किया है। ये सब बातचीत अगर आपको करनी है, जो लोग पर्दे के पीछे रह करके कुछ काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बेबुनियाद षड्यंत्रकारी आरोप लगाते हैं, कोर्ट में जाकर के कुछ और बात करते हैं, एलजी के पास जाकर के कुछ और बात करते हैं, एमएलएस के साथ मिलकर के कुछ वो सांठगांठ करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, ये उनसे पूछिए।
भारतीय जनता पार्टी का मत बिल्कुल क्लियर है। हम पूरी तरह से दिल्ली के अंदर कल अगर चुनाव की घोषणा होती है तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमको सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहेगा तो उसके संदर्भ में जो भी सही उचित निर्णय होगा कि हम अपना आकलन करके, अपना एनालिसिस करके संख्या कहां से लाएंगे? अगर सरकार बनाने का ऑप्शन है तो संख्या कहां से आएगी? संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है, मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, अगर आप लोग तैयार हैं उसके लिए, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट को या फिर होम मिनिस्ट्री को या एलजी को बता क्यों नहीं देते? नहीं, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया साहब जो दोहरी पार्टी के लोग, दोहरी मानसिकता के लोग, उनकी बात का जवाब देना मैं कोई जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन पार्टी को जो हमको करना है वो निश्चित रूप से हमारे लिए सभी बातें, सभी चीजें बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं। चुनाव होगा, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर आएगा सरकार बनाने का तो उसके बारे में हम अपना आकलन करके हमको अगर हाँ करना है या ना करना है इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And Kamaljeet Sandhu is back with us on the phone line. Kamal, interesting sound bites there from Satish Upadhyay saying he's not at this stage ready, of course, to talk about numbers because the BJP doesn't have them, and really the decision isn't his to make anyway. Well, definitely Satish Upadhyay there, first of all, giving that sort of ambiguity, but we obviously spoke to him later on as well, and he said the BJP unit is willing to form the government, but only if the members, that is the rebels, either in the Aam Aadmi Party or the Congress Party, give up the party membership of their own party and are willing to cross over and join BJP. He specifically said about that, and obviously he said that the BJP government, the BJP is willing to form the government, is also willing to go to the polls. They said that decision will be taken on, but at this point of time, there's no proposal lying with the BJP to form the government in the first place. So obviously, we also probed him whether he would want to react to what Manish Sisodia had said, that if BJP was ready for the polls, why is he not giving an affidavit to the Supreme Court, or not even telling the Home Ministry whether they're ready for the polls? So he said that he really didn't want to get into the politics of it, and obviously a government which was only formed for 49 days. But he said in terms of numbers, they will have the numbers when it really comes to the time of forming the government. Specifically, we all know that BJP doesn't have the numbers. There were 3 further vacancies once the MLAs became MPs. So yes, they don't have the numbers. There's also been a serious charge of horse trading, and obviously both the RSS and Narendra Modi, the Prime Minister, not very happy with that. But Satish Upadhyay is coming out specifically saying that if any government is formed, it will be done in a constitutional way. There will not be any toleration of any sort of remarks which says that this government is unconstitutional or the method was not right. So obviously there is a backdoor negotiation which is currently still going on. BJP is still keeping its option very much open. Thank you very much, Kamal, for that update from Delhi. An interesting series of developments there, at least as far as the BJP is concerned.